Good afternoon, my dear kids. We are back yet again to read English of class 4. Today we are moving on to the new lesson, your lesson 4. What are we studying today? We are going to learn a new concept. Come, let's go ahead. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? We are going to go to your lesson 4, here and there. Here and there, इधर और उधर. ओके यहाँ पे क्या कहा गया है? नीता इज अ केयरलेस गर्ल. नीता एक लड़की है एंड शी इज अ केयरलेस गर्ल. नीता इज अ केयरलेस गर्ल, लापरवाह लड़की है. नीता इज अ careless girl. She does not keep her things at their proper places. Things यानो वस्तुएं, जो भी वस्तु है वो सही जगह पे नहीं रखती है. At their proper places. Her mother is worried about her carelessness. Kinki Ma is worried about her carelessness. Neeta's mother is worried about her carelessness. One day, Neeta's friend Mala comes to her house. Who comes? Mala comes to her house. So, who are the girls here? We have Neeta and we have Mala here. Who is careless? Yes, Neeta is careless. And Mala is coming to whose house? Mala goes to Neeta's house. Neeta, who's Neeta for Mala? Neeta is friend. दोनों दोस्त हैं. Both are friends. Neeta and Mala are friends. Okay, you've understood this? Yes? Very good. So, who's a careless girl? Neeta is a careless girl. Careless का अर्थ क्या है? लापरवाह. She does not keep her things. अपनी चीजें जो है वो सही जगह पे नहीं रखती. Proper places. Proper यानी कि सही स्थान. Her mother is worried. चिंतित है. Her mother is worried about her केयरलेसनेस. जो लापरवाही जो दिखाती है, नीता जो लापरवाही दिखाती है, उसके कारण माँ बहुत चिंतित है. वन डे नीता's फ्रेंड माला comes to her house. So Mala comes to Neeta's house. Okay, now let's move ahead and understand more about the story. Okay, so it like how no I have told no कोई भी story हो, we tell who are the characters in the story, कहाँ story हो रहा है, कौन कौन लोग हैं story में, वह सब देखते हैं ना. उसी प्रकार यहाँ भी हम देख रहे हैं. ये एक कॉन्वर्सेशन टाइप का स्टोरी है. दो लोगों के बीच में जो बातचीत हो रही है उसके बारे में है. नीता, नीता, हाउ आर यू माला. तो नीता के घर माला आई है तो आप पूछेंगे कैसे हो, पूछते हैं ना आप. उसी प्रकार नीता आस्क हाउ आर यू माला. व्हाट डज माला से फॉर दैट? माला सेज आई एम फाइन, थैंक यू. we heard we learned about magic words, no? Thank you is a magic word, na? Yes, I am fine, thank you. what about what about you? तुम कैसी हो? I am fine. तो Neeta is asking Mala, how are you, Mala? Mala says, I am fine. Thank you. What about you? Whenever you're talking, you need to have a tonality in your voice. Do not forget about that, kids. Okay? Now, we go to Neeta, and Neeta says, I am also fine. मैं भी ठीक हूँ. Okay? Then, Mala says, I came here to. क्यों आई माला? अपने दोस्त के घर क्यों आई? तो माला कह रही है I came here to take my story book back. तो
स्टोरी बुक यानी जो कहानियों की जो किताब होती है, स्टोरी बुक. सो हु केम टू टेक द स्टोरी बुक बैक? माला. माला सेज आई केम हियर, इधर मैं आई हूँ, टू टेक माई, मेरा, स्टोरी बुक, मेरी कहानी की किताब, जो किताब है, आई वॉन्टेड बैक, विच आई हैड गिवन टू यू लास्ट वीक. पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें दिया था. तो क्या कह रही है? मैं मेरा स्टोरी बुक वापस लेने आई हूँ, जो मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते दिया था, वो कह रही है माला. तो उसके लिए नीता क्या कहती है? तो क्या हो रहा है ऐसे बोलने के बाद? इधर क्या हो रहा है? आफ्टर सर्चिंग एवरीवेयर. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सभी जगहों में ढूंढा ढूंढा जा रहा है. तो माला नीता से कहती है कि मेरा स्टोरी बुक वापस दीजिए, क्योंकि मुझे अभी चाहिए, और मैंने आपको पिछले हफ्ते दिया है, आप अभी वापस कर दीजिए, माला कह रही है. तो व्हाट नीता डस, ऐसे कहते वक्त ढूंढना शुरू करती है. शी स्टार्ट सर्चिंग. आफ्टर सर्चिंग एवरीवेयर, सर्च करने के बाद अभी बात कर रहे हैं वापस. तो नीता कहती है, व्हाट डस नीता से? आई, नीता सेज आई don't remember. I don't remember where I have kept it. देखो, I don't remember, मुझे याद नहीं है. Where I have kept it, मैंने कहाँ रखा मुझे याद नहीं है. Probably, शायद. Probably का मतलब क्या होता है? शायद. ओके, तो probably it was here on the table. No, no, I think, no, I think it was there in the cupboard. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वी अंडरस्टूड दैट माला नीता के घर आई है. माला हैज कम टू नीता's house and Neeta greeted, which is a very pleasant thing to do. How are you, Mala? Mala also responded with good words. I am fine, thank you. She also used a magic word here. What about you? Mala asks. So Neeta says, I am also fine. मैं भी ठीक हूँ. So माला क्या होता है? माला क्या कहती है? I came here to take my story book back which I had given to you last week. पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें मेरी स्टोरी बुक दी थी, मुझे वापस दीजिए. तो क्या करती है नीता? तुरंत ढूंढने लगती है. तो आफ्टर सर्चिंग एवरीवेयर, नीता सेज आई डोंट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं है. वेयर आई हैव केप्ट इट, कहाँ रखा. प्रॉबेबली इट वॉज हियर, शायद इधर था. ऑन द टेबल, कहाँ पे था? शायद टेबल पे था. नो नो, नहीं नहीं, आई थिंक इट वॉज देयर इन द कबर्ड. तो उसको सही से पता नहीं उसने चीज कहाँ रखी है. तो उसको क्या, क्योंकि शी इज वेरी केयरलेस. पहले कहानी के शुरुआत में कहा था ना कि नीता इज अ वेरी केयरलेस गर्ल. सो नीता इज वेरी केयरलेस. सो व्हाट हैपेंस हियर? शी डजंट रिमेम्बर, उसको याद नहीं, क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया कहाँ चीजें रखती है, वो ध्यान नहीं देती. तो नीता इज वेरी केयरलेस एंड शी डजंट रिमेम्बर कहाँ रखा. तो यह सेज नो नो, आई थिंक इट वॉज देयर इन द कबर्ड. कबर्ड में हो सकता है, नहीं तो टेबल में हो सकता है, ऐसे नीता कह रही है. तो माला क्या कहती है इसके लिए देखते हैं. ठीक है, अभी विल मूव ऑन. आप लोगों को समझ में आ गया? गिव मी अ थम्स अप इफ यू अंडरस्टूड इट. वेरी गुड. Okay, now let's go and understand कि what happened in the story. Should you be careless? क्या आपको लापरवाह होना अच्छी बात होती है? नहीं, बिल्कुल सही, अच्छी बात नहीं होती है. So when Neeta says like that, माला क्या कहती है? देखें, माला says you should
keep the things at their proper places. Should I help you? तो देखिए कितनी अच्छी बात है। माला कहती है, माला गुस्से हुए बिना क्या कहती है, अभी अगर आपकी चीज कुछ खो गई, किसी ने ध्यान से नहीं रखा हो, तो आपको शायद गुस्सा आ सकता है, आप नाराज हो सकते हैं, खटोर बात कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे देखिए, माला इज वेरी काइंड। व्हाट शी सेज, यू शुड कीप थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। चीजों को सही स्थान पे रखना जरूरी है। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, सिर्फ कहा नहीं, पर मदद करने के लिए तैयार है। तो दैट्स अ वेरी काइंड thing to do. So Mala is helpful. She wants to help whom? She wants to help Neeta to organize. Organize यानी कि organize का मतलब क्या होता है? कोई चीजें हैं तो उनको अगर ऐसे बिखरे पड़े हैं, अगर मुझे ऑर्गेनाइज करना है, इसको बोलते हैं स्कैटर्ड। अभी इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो मैं एक लाइन में ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे में लाइन में। अभी दिस इज स्कैटर्ड whereas दिस इज ऑर्गेनाइज्ड। तो आप यहाँ पे गिनती करने में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे देखिए 3 और 4 मिलके 7, तो आसानी से आप जोड़ पा रहे हैं, गिन पा रहे हैं। तो इट्स गुड टू बी ऑर्गेनाइज। तो क्या कर रही है हमारी जो माला है, शी इज गोइंग टू हेल्प नीता। ओके, सो लेट्स गो। So we learned the word scattered and organized today. आपके जो vocabulary के में लिख दीजिए ताकि आप उसको डेली उपयोग कर पाए। तो what does Neeta say when Mala says should I help you? Neeta says yes please. तो प्लीज मेरी मदद कर दो। yes please. Please again is a magic word. Very good. You all remember your previous lesson. So now what happens is Mala and Neeta begin to keep the things. Mala and Neeta begin to keep the things at their proper places. तो क्या करना शुरू करते हैं? Mala and Neeta begin to keep the things at their proper places while they are arranging, यानी कि व्यवस्थित स्थान में रखना। arranging, while they are arranging the things, while they are arranging the things, Mala finds her storybook in the cupboard. Meanwhile, Neeta's mother enters the room. So what happens? This is a conversational style story, but बीच-बीच में क्या हो रहा है बता रहे हैं। तो माला एंड नीता बिगिन टू कीप द थिंग्स एट द प्रॉपर प्लेसेस। सही स्थान में वस्तुएं को रखना शुरू कर दिया है किन्होंने? माला और नीता ने। ठीक है, तो while they are arranging the things, while they are arranging the things, माला finds her story book in the cupboard. स्टोरी बुक कहाँ मिला? कबर्ड में मिला। Meanwhile, नीता's mother enters the room. अभी नीता की माँ रूम में एंटर कर चुकी है। ठीक है, तो अभी हमें पता है नीता केयरलेस है और माला अपना किताब लेने वापस आई थी, तो नीता को कहाँ रखा सही से
पता नहीं था, तो माला ने क्या कहा, यू शुड कीप थिंग्स एट द प्रॉपर प्लेसेस, शुड आई हेल्प यू पूछा, तो नीता सेज यस प्लीज। फिर वो लोग सब अरेंज करने लगे। तो यहाँ पे आपने नया शब्द जो सीखा होगा वो रहेगा अरेंजिंग थिंग्स। मीनवाइल आपको नया शब्द होगा, शायद प्रॉपर भी आपको एक नया शब्द होगा, बाकी सब कबर्ड भी शायद होगा, बट बाकी सब आपने कहीं कहीं सीखा होगा। तो प्रॉपर, अरेंजिंग, कबर्ड एंड मीनवाइल कैन बी न्यू वर्ड, सो यू कैन राइट डाउन द स्पेलिंग्स ऑफ दैम। लिख के मुझे चैट बॉक्स में इंडिकेट कीजिए आपने लिख दिया करके, तो मैं ये हटा दूंगी। सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, नीता सेज, नीता सेज माँ सी माई रूम, खुश हो गई ना, माँ सी माई रूम। तो क्या कहा जा रहा है, नीता जब माँ एंटर करती है, कोई भी एंटर करते हैं उनको अक्नॉलेज करना पड़ता है, उनको वेलकम करना पड़ता है। अभी माला जब एंटर हुई थी तो अब क्या हुआ, नीता ने बोला हाउ आर यू पूछा। अभी मम्मी जब एंटर की तो नीता ने क्या किया, माँ सी माई रूम, रूम की व्यवस्था दिखाई। तो यहाँ पे मम्मी क्या कहती हैं देखें, मदर सेज ओ गुड, वेयर इज योर ब्लू बैग। तो वेयर इज योर ब्लू बैग, माँ पूछ रही है। ब्लू यानी कि रंग, बैग यानी कि जो बैग हम कैरी करते हैं। सो मदर आस्क वेयर इज योर ब्लू बैग। तो लेट्स सी इफ नीता नोस। ठीक है, अभी ये मैं हटा देती हूँ और देखती हूँ कि अगर नीता को ये चीज पता है कि नहीं। ओके, एवरीबडी इज फॉलोइंग मी, कोई भी डाउट है आपको यहाँ तक? वी कैन गो अहेड, यस, वेरी गुड, चलिए। So we have to be careful. We should not be careless. Okay, careful यानी कि ध्यान से चीजें करनी चाहिए, सभी चीजों को सही से लिखना चाहिए, लापरवाह नहीं होना चाहिए। तो नीता की माँ क्या पूछती है, व्हाट डज नीता's मदर आस्क, वेयर इज योर ब्लू बैग। सो लेट्स सी इफ नीता नोस, नीता को पता है कि नहीं, देखते हैं। तो नीता सेज इट इज हियर ऑन द टेबल, इट इज हियर ऑन द टेबल। देन मम्मा वहां पे रोकती नहीं है, देखिए शी आस्क अनदर क्वेश्चन, मदर आस्क्स वेयर इज योर ब्लू फ्रॉक। ब्लू फ्रॉक यानी जो ड्रेस पहना है, वेयर इज योर ब्लू फ्रॉक। तो व्हाट डज नीता नो दिस, लेट्स सी। नीता, व्हाट डज नीता से, लेट्स सी। नीता सेज इट इज, फ्रॉक सब कहाँ रखा जाना चाहिए, आप बताइए, वेयर शुड, कपड़े कहाँ रखने चाहिए? सही कहा, कबर्ड में। सो इट इज दैट इन द cupboard, is there in the cupboard. So what does mummy say for that, let's find out. So again mother says, asks here, where are your black shoes? तो माँ क्या पूछती है, माँ सेटिस्फाई नहीं हुई है, मम्मी को और जानना है कि चीजें सही से रखी कि नहीं। तो व्हाट डज मम्मा आस्क नेक्स्ट, वेयर आर योर ब्लैक शूज। तो व्हाट डज नीता से, व्हाट डज नीता से, शी सेज दे आर हियर इन द शू रैक। तो दे आर हियर इन द शू रैक, ये यहाँ है। देखिए, जब नीता इज पॉइंटिंग थिंग्स, उसके पास खड़ी हो, थे शी यूज द वर्ड हियर। अगर थोड़ा दूर हो, वस्तु दूर हो, तो कहूंगे देयर कहूंगी। तो हियर एंड देयर, सो इट इज देयर इन द कबर्ड। नाउ व्हेन दे आर सेइंग दे आर हियर इन द शू रैक, यहाँ पे है, वहां पे है। हियर का मतलब यहाँ,
There का मतलब वहां. ठीक है? We have understood that. Now let's go ahead and see what does mama say. Mother says, very good, बहुत खूब, very good. Whenever we are very excited, we use a exclamation mark. जब भी सवाल पूछेंगे, we use a question mark. At the end of a regular sentence, we use a full stop. Did you notice the punctuations? We use a full stop, question mark and an exclamation here. These are called as punctuations. Okay. So here very good. Then we have Neeta. Very good Neeta. You should, यहाँ पे एक कमा. ठीक है? Where Neeta, you should keep small things here on the टेबल. छोटी चीजें, छोटी वस्तुएं आपको टेबल पे रखना है, मेज पे रखना है. एंड बिग थिंग्स, बिग थिंग्स देयर इन द कबर्ड. तो छोटी चीजों को टेबल पे रखना है और बड़ी चीजों को कहाँ रखना है? कबर्ड में. कौन कह रहा है? ये माँ कह रही है. मदर इज सेइंग. ओके, सो दिस इज अ कॉन्वर्सेशन व्हिच हैपेंस एट Neeta's home, and Mala also is there in the beginning. Mala comes and helps Neeta arrange things. So then Neeta's mom enters the room and she asks. Then Neeta क्या कहती है? माँ, सी माई रूम. तो मम्मा सेज, ओ गुड, वेयर इज योर ब्लू बैग. तो नीता को पता है कि देखते हैं, हमने देखा था ब्लू बैग कहाँ पे था? टेबल पे था. वेयर, देन मदर आस्क, वेयर इज योर ब्लू फ्रॉक? ब्लू फ्रॉक इज इन द कबर्ड. देन अगेन मम्मा आस्क, वेयर इज ब्लैक शू? सो नीता सेज, शू रैक. Then mother says, very good, नीता, you should keep small things here on the table. छोटी वस्तुओं को टेबल पे रखना है और बड़ी चीजों को, बिग थिंग्स हियर देयर इन द कबर्ड. सो आपके जो पाठ्य पुस्तक में ऐसे आपको दो चित्र दिए गए हैं. यहाँ पे देखिए, आपके जो किताब में है, यहाँ पे बैग यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे वाटर बॉटल यहाँ पे पड़ा है. You see, here the notebooks are all scattered here. Here also the books are scattered. Here see the cupboard is open, the cloth is hanging here, and Mala is coming to meet Neeta. But see, it is not at all organized. Then what happens when she couldn't find the storybook? क्या हुआ? Then they started arranging. Now see, all the clothes are neatly arranged in the cupboard and the shoe is on the shoe rack. Okay, so see how neatly arranged even the cupboards are closed, and this cupboard also should be closed. After आप कोई भी कपड़े लेते हैं, अभी मम्मी साफ करते वक्त आई तो कबर्ड खुला है. But whenever you finish cleaning, even the cupboard should be closed. It should not be open. Okay. So we have finished the lesson here and there. It is a very easy lesson. Okay. So did you notice something? We notice punctuations, and we notice in this lesson that they are using describing words. Describing words जैसे कि frock is blue, black shoes. ठीक है? So what are they doing? They are using describing words. So in the next class we will understand what are the describing words. Okay? Shall we do that in the next class? Yes? Okay. So now what we will do here is we will wind up today's session as we have completed our entire lesson here and there. Do you have any doubts, kids? Okay. So you want me to write the difficult spellings, right? So I will write the difficult words, जो, and you can note it down in your textbook or notebook. ठीक है? So few spellings, let's see which are difficult. You might have to learn the spelling of careless. Careless यानी कि लापरवाह. Careless will be a spelling you can note down. लिख simultaneously लिख दीजिए. Proper,
and careless girl, and when you talk about it, her carelessness. Carelessness, लापरवाही. care care यानी कि ध्यान देना. लेस मने ध्यान नहीं है. care मने एक चीज को care करना, ध्यान देना. carelessness नेस जब एक टेंडेंसी को डिस्क्राइब कर ले हैं, तो इस प्रकार से आप स्पेलिंग को याद रखें. careless, carelessness. Okay. फिर we have another spelling that you might find difficult is searching. ढूंढना. सर्च, सर्च और फिर एक ing ऐड किया है. सर्चिंग. Then we might have cupboard as a difficult spelling here. So cupboard. कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे लिखते हैं, ये गलत है, ये सही है. तो कबर्ड का स्पेलिंग कपबोर्ड. ठीक है, इस प्रकार से है. ठीक है. नेक्स्ट we have difficult spelling in the lesson which is remember. Remember. So you can remember as remember. Remember can be a spelling. Next question, next difficult spelling can be arranging. Arranging यानी कि सामान को सही तरह से लिखना. Arranging. Another spelling can be meanwhile. Meanwhile means उस दौरान. Meanwhile, Neeta's mother enters the room. After that, you might have shoe rack as a difficult spelling. Shoe rack. शू को शू के रखने वाला रैक. शू रैक. Otherwise, all the spelling should be easy for you. So these can be a little and worried. Worried. Probably. ठीक है. So these can be little difficult spelling. Even everywhere can be little difficult. Everywhere. ठीक है. तो ये स्पेलिंग्स आप नोट कर लीजिए एंड गिव मी अ थम्स अप वंस यू आर डन. सो कोई कोई ने पूछा था, किन लोगों ने पूछा था कि स्पेलिंग्स को लिखने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है केयरलेस, प्रॉपर, केयरलेसनेस, सर्चिंग, कपबोर्ड, रिमेम्बर, अरेंजिंग. अरेंज यहाँ पे ई को हटाएंगे, सिर्फ आईएनजी लिखा है. अरेंजिंग. मीन वाइल. शू रैक. worried यानी चिंतित. probably शायद. and everywhere सब जगह. everywhere. ठीक है. Okay, kids. Now let's finish today's class with this, and next class we'll do your comprehension question and your respective grammar, understanding adjectives. Okay, let's finish today's class here. Meet you in the next class. Jai Vidya Shakti, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Ganesha.